Hello friends, welcome to Monologue Classes. मेरा नाम गौतम दीक्षित है. Today in this video we are going to discuss the most important news from the Hindu edition of 2nd December 2022. So let's start with the news. The first news is that after Himachal Pradesh, now the assembly election for Gujarat is going on, where Gujarat has recorded over 62% of voter turnout in the first phase. The second news is that November GST revenues rise 11% from year to year basis. Now we have discussed this earlier also that दो टाइप के हमारे पास डेटा आते हैं. एक ईयर ऑन ईयर बेसिस कितना चेंज आया और एक मंथ ऑन मंथ बेसिस कितना चेंज आया. सो ईयर इट इज 11% फ्रॉम ईयर टू ईयर बेसिस. तो GST द फुल फॉर्म इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. सो इट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. पहली चीज तो ये है. देन इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स एंड एड वॉलरम कह सकते हो आप. वैल्यू एडेड टैक्स की जो वैल्यू एडिशन होता है उसके ऊपर एक टैक्स लगता है. GST के जो है कंपोनेंट्स जो होते हैं, एक होता है सेंट्रल GST CGST, एक होता है स्टेट GST SGST, उसके बाद होता है इंटीग्रेटेड GST. नाउ अब यहाँ पे अगर हम देखें द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट विच इंट्रोड्यूस GST. सो इट वाज 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट which introduced GST, indirect tax, subsuming tax on goods and services. GST के पहले ऐसा था कि सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स लगता था वो सिर्फ सेंटर की किटी में जाता था. अब GST के बाद अब ऐसा हो गया है कि स्टेट एंड सेंटर बोथ दे कैन कलेक्ट टैक्सेस ऑन सर्विसेज. सो if you will just see India's gross GST revenue, it was 1,45,867 crore in November 2022. ठीक है, नंबर्स ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बट देन ऑल्सो just to see the pattern. So 11% higher than a year ago, but nearly 4% below October's kitty. उसके बाद अगर आप देखेंगे revenues from import of goods were 20% higher, while domestic transactions including import of services yielded 8% higher taxes than November 2021. उसके बाद अगर हम देखेंगे GST compensation cess collection, so it was rupees 10,433 crore. Okay, then the next, if you will just see the components of GST, so see 33,997 crore of CGST, 28,538 crore of SGST and ISGST as regular settlement. उसके बाद अगर हम देखेंगे द सेंटर हैज़ रिलीज्ड रुपीज 17,000 करोड़ एज GST कंपनसेशन ड्यूज टू स्टेट्स. तो देखिए जब GST लगा था तो ये ऐसा हुआ था कि several states they were going to lose on their revenue. तो उसको लॉस ऑफ रेवेन्यू को कंपनसेट करने के लिए GST कंपनसेशंस जो थे स्टेट्स को वो देने जाने थे 5 साल के लिए. बाद में उसको एक्सटेंड भी किया गया. सो नाउ सेंटर इट हैज़ रिलीज रुपीज 17,000 करोड़ एज GST कंपनसेशन टू states to compensate the loss in revenue. If we talk about states, so Gujarat, Rajasthan, Kerala, these are among the 6 states to record contraction in revenue. बल्कि और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड बिहार दे हैव सीन द हेल्दी ग्रोथ. चलिए अब G20 हमने बहुत डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं. G20 मीटिंग इट विल बी हेल्ड 56 लोकेशंस इन इंडिया. ओके, एंड इट विल एंश्योर पैन इंडिया नेचर ऑफ द इवेंट. ओके, सो यहाँ पे G20 का देखिए लोगो भी है. G20 का जो थीम है 2023 के लिए वो है वसुधैव कुटुंबकम, विच हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम महाउपनिषद. नाउ द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू. अब देखिए सिक्योरिटी के हिसाब से वी हैव अ वेरी गुड आर्टिकल. नाउ वी हैव Afghanistan intelligence chief Rahmatullah Nabil. Now he is saying that Pakistan terror groups they are now shifting base to Afghanistan. Now this is a cause of concern actually, क्योंकि अगर आप दोहा एग्रीमेंट देखेंगे, दोहा एग्रीमेंट जो था which laid the foundation for withdrawal of US from Afghanistan. So one point of this Doha agreement was that Afghanistan should not become the haven for terror groups. Okay, but now see what is happening over here since the Taliban takeover of Afghanistan. So now the terror groups in Pakistan they are now shifting base to Afghanistan. So यहाँ पे जो रहमतुल्लाह नबील हैं जो अफगानिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ हैं, ही इज सेइंग दैट पाकिस्तान टेरर ग्रुप सच एज जैश ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, they have shifted their base to Afghanistan with help from Taliban and they have access to more technology and territory. Okay, so this is very important development. Now this is about turtle and tortoise. So let's see, let's
पिक आउट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो टर्टल्स एंड टोर्टाइस जो होते हैं अगर आप देखेंगे तो इनकी स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको ध्यान में रखते हुए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, अब ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है ये यूएनएफसीसी का नहीं है, ये साइट्स का है, CITES, साइट्स, साइट्स का फुल फॉर्म। ओके, is Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. This is the convention by IUCN, International Union for Conservation of Nature grant. तो अभी इसने क्या किया है कि रिसेंटली 2 species of freshwater turtles which are found in India, that is red crowned roof turtle and Leith's soft-shelled turtle, they have been added to Appendix 1 of CITES. तो Appendix 1 में वो endangered species होते हैं which needs the highest level of protection. Okay, so this is important. Now if you will just see over here that India, it has 29 species of freshwater turtles and tortoise. And what is the difference between turtles and tortoise? So if you will just see, turtles, they are primarily aquatic, whereas tortoise, they are terrestrial and spend more time on land. Then if you will just see that more than half of the turtle species, they are threatened and 11 are protected under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act. Schedule 1 जो है इंडिया का Wildlife Protection Act, it gives the highest protection in India to any wild species. Now if you will just see the red crowned roof turtle, which has been included in Appendix 1 of CITES also. It is found in National Chambal Gharial Wildlife Sanctuary, which is spread across Rajasthan, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. Now this species is in the list of 25 most threatened freshwater turtles in the world, along with Northern River Terrapin, okay, which is left only in सुंदरबन। तो ये नॉर्दर्न रिवर टेरापिन है, जिसको बाटागुर बास्का भी कहते हैं, ये अब इंडिया में सिर्फ सुंदरबन में मिलता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे टर्टल्स, दे आर स्मगल्ड प्राइमरीली फॉर 3 रीजन। फर्स्ट इज फॉर देयर मीट, देन एज पेट एंड देन टू एक्सट्रैक्ट देयर कैलिपी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दैट देयर आर इन इंडिया देयर आर ऑर्गेनाइजेशन सच एज टर्टल सर्वाइवल अलायंस व्हिच हैव असिस्टेड इन द रिहैबिलिटेशन ऑफ 30,000 रेस्क्यूड टर्टल्स ओवर द पास्ट 10 ईयर्स। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि ये जो पर्सन है ये बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सन है, शैलेंद्र सिंह जी, हु इज प्रोग्राम डायरेक्टर ऑफ टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया, who was awarded the Behler Turtle Conservation Award in 2021 for helping to bring 3 critically endangered conservation species back from the brink of extinction. Okay, one of them was Northern River Terrapin, which is only now found in Sundarban. Now coming to the official GDP data, so if you will just see that gross domestic product is projected to have grown by 6.3% from year to year, and a sharp deceleration of from 13.3% expansion which was posted in first quarter and July-September 2008.4%। मतलब कि GDP जो है it is projected to have grown by 6% from year to year basis। ओके, उसके बाद अगर आप देखेंगे जो जुलाई-सितंबर पीरियड था वहाँ पे जो एक्सपांशन था it de-accelerated at that point of time। उसके बाद देखेंगे there are 3 sectors okay which have grown on year basis, which are agriculture, okay, then financial, reality and professional services, and then contact intensive services sector like trade, hotels, transport and communication। उसके बाद अगर आप देखेंगे that 5 sectors like agriculture, electricity, gas, water supply, other utility services and construction posted sequential contractions reflecting the uncertainty in global slowdown because of Ukraine crisis and COVID-19 pandemic। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे नंबर से ज़्यादा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि दैट इज़ देयर एनी रिवाइवल ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एक्सपेंडिचर। ओके, सो इफ यू विल जस्ट सी दैट प्राइवेट कंजम्पशन इट सिग्नल सम फेस्टिवल लेड रिबाउंड, मतलब प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है बिकॉज ऑफ द फेस्टिव सीजन। बट अगर आप देखेंगे दैट ग्रोथ इन बोथ प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इट स्लोड appreciably, okay, with the former logging a 9.7% expansion compared to 25.9% earlier. Now, the next is laying the ground to delegitimize the Supreme Court. तो यहाँ पे we have discussed the collegium system before also and now also. Okay, so this is the history of that where I will just give you a brief that कि यहाँ पे जो भी बात है वो है collegium system की जो बात चल रही है, ठीक है। कॉलेजियम सिस्टम को
जिस प्रकार से जो क्रिटिसिज्म चलता है इसके अंदर ये चलता है कि जजेस आर अपॉइंटिंग जजेस, फाइन, जजेस आर अपॉइंटिंग जजेस। अब जो है अब इसके बारे में फिर से इसके लिए बात हो रही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि इफ यू विल कम टू द सेकंड पैराग्राफ, that Supreme Court has taken up the question of inaction on the part of the Union government in notifying recommendations made by the Collegium. Okay, now on Monday, after the bench expressed displeasure at some of the comments of Mr. Rijiju, who is the law minister, regarding the appointments, news have emerged that the Union government had returned 19 recommendations to the Collegium hours before the proceedings. ठीक, मतलब कि जो कॉलेजियम सिस्टम ने जो रिकमेंडेशन भेजी थी यूनियन लॉ मिनिस्टर को, उसको वापस, उसमें से 19 रिकमेंडेशन जो है वो वापस भेज दिया गया। इस कॉलेजियम सिस्टम को लेके जो डिबेट है वो आज से नहीं, बहुत पहले से चलते आ रहा है। जो हमारे 49 चीफ जस्टिस थे, यू ललित जो अभी रिटायर हुए हैं, और इनके बाद DY चंद्रचूड़ जो नए चीफ जस्टिस बने हैं, 58 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ोगे तो ये देखेंगे कि जब से वो एक चीफ जस्टिस बने तब से जो है, अगर आप देखोगे दैट गवर्नमेंट का और इनका टकराव ज़्यादा ही हो रहा है। सो यू हैव सेड दैट कॉलेजियम इज अ परफेक्ट सिस्टम टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि इस कॉलेजियम सिस्टम की जो डिबेट है, तो देखिए 2015 में क्या हुआ कि द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विच हैड रिजल्टेड इनटू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, तो जो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी वो उसने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, साइटिंग दैट इट इम्पैक्ट्स द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी विच इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Okay, so NJC subverted the independence of the judiciary, which is a key component of the court's conception of basic structure of the constitution. ये जो basic structure है, it is the outcome of केशव नंदा भारती केस। ठीक है, उसके बाद ये हुआ कि उसी केस में कोर्ट एक्नॉलेज दैट देयर वर प्रॉब्लम्स विद द कॉलेजियम सिस्टम विच रिक्वायर्ड इंटरवेंशन। तो इसके लिए एक सेपरेट प्रोसीडिंग स्टार्ट हुआ बाय द सेम बेंच विच एस्टेब्लिश्ड अ 2-member कमिटी ऑफ सीनियर लॉयर्स, और उसमें से एक जो थे वो गवर्नमेंट के लॉ ऑफिसर थे, टू कंपाइल द सजेशंस रिसीव्ड फ्रॉम द लीगल कम्युनिटी। उसके बाद गवर्नमेंट ने भी अपने सजेशंस दिए। उसके बाद वायबल इनपुट्स ऑल वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ न्यू मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट। उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोला कि दैट द राइट एंड पावर टू फ्रेम दिस मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर वॉज स्क्वेयरली इन द field of government, means it's a prerogative of government to form the memorandum of procedure. So कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया, प्रोसीडिंग क्लोज किया, और यूनियन गवर्नमेंट को बस एक ब्रॉड गाइडलाइन दिया कि दैट मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर इट शुड फोकस ऑन एलिजिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटेरिएट एंड कंप्लेंट्स रिड्रेसल ड्यूरिंग द प्रोसेस। बट अब इसका मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर का क्या आउटकम है ये अभी तक हमें पता नहीं है। उसके बाद जो गवर्नमेंट का जो रेस्पॉन्स है आफ्टर द NJC वॉज स्ट्राइक डाउन बाय द गवर्नमेंट, ओके, इट वॉज टू स्टॉल द अपॉइंटमेंट्स रिकमेंडेड बाय द कॉलेजियम सिस्टम। नाउ अगर आप हम बात करें थोड़ा सा, अगर हम इंटरनेशनल भी बात करें, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि दैट इन मैनी कंट्रीज द जुडिशरी हैज़ बीन द फर्स्ट टारगेट ऑफ रेजिम दैट स्ट्रीट्स टू स्ट्रेंथन देयर होल्ड ओवर पावर। मतलब किसी भी गवर्नमेंट को अगर पावर पे होल्ड करना है तो सबसे पहले वो जुडिशरी पे ही अटैक करती है, जैसे कि हंगरी एंड पोलैंड। अगर आप इंडिया में बात करें तो द कोर्ट दे हैव ट्राइड टू रेजिस्ट दिस प्रोसेस, मतलब द एफर्ट ऑफ गवर्नमेंट टू होल्ड द पावर, टू सेंट्रलाइज द पावर, बट थ्रू द फ्लॉड मेथड ऑफ कॉलेजियम सिस्टम। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कॉलेजियम सिस्टम के बारे में जो ऑथर का जो ओपिनियन है दैट इट रिक्वायर्स अ री इंटरप्रिटेशन, ओके, एंड इट फेल्स to fulfill basic demands of transparency and accountability and remains prone to charges of nepotism। तो ये जो कॉलेजियम सिस्टम का एक क्रिटिसिज्म है कि that it is not open, it is not transparent, okay, like that, fine। So अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि कोर्ट अब सजेशन जो है लास्ट लाइन में, that court must voluntarily take up reform to the collegium system and expedite the creation of new MOP by incorporating the legitimate concern of government and other stakeholders. So this is the only way to reform the appointment in judicial system. The next is personality rights। तो देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली पास किया है एक इंटरिम ऑर्डर to prevent the unlawful use of Bollywood star Amitabh Bachchan's name, image and voice। तो now see what is personality right। personality right जो है, okay,
it refers to the right of person to protect his her personality under the right to privacy or property. Now अगर आप देखेंगे that these rights they are important for any celebrities as because को जो भी सेलिब्रिटी होता है उसका नाम, फोटोग्राफ और उसका वॉइस जो है वो इजीली मिसयूज किया जा सकता है. अभी जो पर्सनालिटी राइट्स हैं, ठीक है ना, इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ राइट्स. द फर्स्ट इज राइट ऑफ पब्लिसिटी एंड द राइट टू कीप, द सेकेंड इज टू राइट ऑफ प्राइवेसी और द राइट टू कीप वंस इमेज फ्रॉम बीइंग कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड विदाउट परमिशन. Okay, and the next is the right to privacy or right to not have one's personality represented publicly. ठीक है, मतलब कि अगर आप देखेंगे पहला राइट द राइट टू पब्लिसिटी, तो इसमें ये है कि अगर उसे पब्लिसाइज करना है कमर्शियली तो दैट शुड बी विद परमिशन, अगर नहीं भी करना है देन इट शुड बी प्रोटेक्टेड. ओके, सो दैट इज द राइट. तो अब यहाँ पे एक बात ये आ जाती है कि जो पब्लिसिटी राइट्स हैं इंडिया में, दे आर गवर्न्ड बाय स्टैट्यूट्स लाइक ट्रेडमार्क एक्ट 1999 एंड कॉपीराइट एक्ट 1957. इफ यू विल जस्ट सी द पब्लिसिटी राइट्स, तो द पब्लिसिटी राइट्स जो है वो इंडिया में दे फॉल इनटू द रिल्म ऑफ टॉर्ट ऑफ पासिंग ऑफ. तो पासिंग ऑफ मतलब इट टेक्स प्लेस व्हेन समवन इंटेंशनली और अनइंटेंशनली पासिस ऑफ देयर गुड्स और सर्विसेज एज दोज बिलोंगिंग टू अनदर पार्टी. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज पासिंग ऑफ. द नेक्स्ट इज व्हाट, अब इन सब के बीच में कंज्यूमर्स कहाँ पे आया, ठीक है ना. तो देखिए, अगर सेलिब्रिटीज का राइट प्रोटेक्टेड है फ्रॉम कमर्शियल मिसयूज, बट देयर हैव बीन एग्जांपल्स वेयर कंज्यूमर्स आर मिसलेड ओइंग टू फॉल्स एडवर्टाइजमेंट बाय सेलिब्रिटीज. तो इसी की वजह से द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स दे हैव मेड अ नोटिफिकेशन इन 2022 to keep a check on misleading advertisement and endorsements of consumer products by imposing a penalty on endorser, मतलब celebrity. Now, coming to G20 again, that G20 presidency unparalleled a crucial responsibility, says Jay Shankar. So we all know that now from 1st December 2022, India has assumed the presidency of G20. G20 जो है अगला जो समिट होगा वो इंडिया में ही होगा. और we have just said that 56 locations, across 56 locations it will be held, and 100 monuments and landmarks across the country they were illuminated on this thing. अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो G20 it brought together leading economies of the world and included 2/3 of the world population. और उसके साथ साथ जो G20 के मेंबर्स नहीं हैं उनको भी इंडिया ने इनवाइट किया है. सो दोज आर बांग्लादेश, मॉरिशियस, इजिप्ट, सिंगापुर, नाइजीरिया, नीदरलैंड, ओमान, स्पेन एंड UAE. नाउ अगेन GM Mustard, तो हमने लास्ट मंथ में पढ़ा था कि दैट जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी विच कम्स अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हैज गिवन द अप्रूवल फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ GM Mustard. तो यहाँ पे GM Mustard का जो नाम है वो देख लीजिए, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11. ये एग्जाम में आ सकता है, DMH 11. So now over here if you will just see that the court has questioned that the regulatory system under the genetic engineering appraisal committee which has cleared the environmental release of DMH 11, okay, was horrendous and riddled with conflict of interest. ये allegation लगा है, ठीक है. तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे that जो जस्टिस नागरत्ना है, ठीक है ना, BV नागरत्ना, who is going to be the first woman chief justice of India by 2027. So she has said that the court's questions were based on the Indian context. तो यहाँ पे जो कोर्ट है वो this is asking that is there a compelling reason for GM Mustard? Will it not affect the environment? ठीक है, that the court is asking. Now see, Israel Prime Minister designate Benjamin Netanyahu, he has reached a coalition deal with religious Zionism party, okay, to form a new government. So Mr. Netanyahu he belongs to Likud party, okay, and now if you will just see कि इसराइल का ये सिस्टम है वेयर इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि यहाँ पे जो है पार्टीज के बीच में सीट्स डिवाइड होती हैं बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स, ठीक. सो दैट इज द थिंग. और उसके बाद जो इसराइल का जो पार्लियामेंट है उसको कहते हैं नेसेट. द नेक्स्ट, डेब्ट टॉक्स इन श्रीलंका पुट स्पॉटलाइट ऑन चाइनाज लोन्स. तो यहाँ पे आप देखेंगे तो डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में बात हो रही है. तो अगर आप देखेंगे कि IMF ने जो $2.9 बिलियन का पैकेज जो पहले अप्रूव किया है श्रीलंका के लिए, देयर इज वन प्री रिक्विजिट दैट द लैंडर्स दे हैव टू वर्क ऑन द लोन
agreement of okay loan restructuring agreement for Sri Lanka to avail this package. अब इसमें से अगर आप देखेंगे तो दैट बीजिंग इसके पास सबसे बड़ा रोल है प्ले करने के लिए इन द डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस, ओके, बिकॉज Sri Lanka's 19.6% of the debt, that is $7.4 billion, it is of China. Now, appointment Sanjay Malhotra takes charge as Revenue Secretary. So, senior bureaucrat Sanjay Malhotra, he has took charge as the Secretary in the Department of Revenue, Minister of Finance. So, Minister Malhotra has replaced Tarun Bajaj, who superannuated on November 30, and he is a 1990 batch IS officer of Rajasthan cadre. So, friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Then, till then, have a nice time. Take care. Thank you.